to fulfill some tasks. Thank you so much. So basically, every network is set up in order to fulfill some task, in order to do some tasks. So we have a number of tasks we have mentioned yesterday, and I think those are kept on my Jamboard. So we'll open the Jamboard. Okay. So yesterday, simultaneous lectures are going on. मेरी बच्ची है उसका भी lecture शुरू. तो सब मैनेज करना पड़ता. So हम लोग ने ये स्टार्ट किया था. And क्या देखा था हम लोग ने? हाँ, we have seen few examples also, like computer network, family network, then application of computer network. In application of computer network, I'm just taking a revision of 1 minute or 2 minutes. उसके बाद में हम लोग continue करते हैं. So these were the application discussed, and we shared with us that these are the application, the possible application. And after that, और क्या देखा था हम लोगों ने? Hardware and software component. Okay. So basically, what are the different components which are required in terms of hardware and software in order to build a network? That's what I'm simple. और उसके बाद में uh, the categorization. Okay, the types of network. Okay, the types of network can be categorized into three different ways. Okay, those we have already seen, that is based on the geographical area, based on the role model, and based on the purpose. Okay, the two which are important are based on the geographical area and based on the role model. Okay? So if you talk about based on geographical area, then we have LAN, we have MAN, and we have WAN. That is local area network, metropolitan, wide area network. Local area network, same location. Okay, the geographical area will be same. Okay? The multiple computers who wants to connect with each other are in the same geographical area. Okay, when we talk about the MAN, that is metropolitan area network, so they are not at the same geographical area. They are they are having some distance between them, and we cannot connect on the basis of land. Okay, जहाँ ना काम आए land, वहाँ काम आए man. Okay? So your man, but but the two system or the various systems which we are connecting must be in a metropolitan city. इसीलिए इसका नाम भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. And after that we have last one, that is wide area network. In wide area network we have large connectivity. Okay, we can connect to MAN. Okay, two metropolitan area networks can be connected with the help of MAN. That is wide area network. Okay, if the computers, if the systems are outside of the metropolitan area or metropolitan city, you can see that it can be connected with the help of the WAN, that is wide area network. उसके बाद में हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क पढ़ा था. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक सर्वर, बाकी सारे क्लाइंट. Client will request, server will serve the request, and the server will act as a one ruler. Okay, and the clients are they all are doing some tasks for the server. So essentially, peer-to-peer network, they all are like standalone computers. Okay, they are not a client, and they are not the servant of any server. Okay? So basically peer-to-peer network में सारे के सारे equal privileges के computers connected. ठीक. तो ये छोटा सा हम लोग ने शॉर्ट में देखा था. ये LAN मैन का तो ये इसका डायग्राम है. You can see these all the systems are in the same geographical area. You can see all the systems are in the same geographical area, so we can say these systems are connected on the basis of LAN. Okay? Then अब ये दो LAN को अगर कनेक्ट करना है तो उसके अंदर बेसिकली हम लोग को LAN यूज करना पड़ेगा. और अगर दो बड़े बड़े एरियाज को कनेक्ट करना है तो बहुत मतलब अलग अलग सिटी में है तो आपको WAN के थ्रू. ओके, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेटवर्किंग डिवाइस. सो 10:15 हो गए, थोड़ा सा हम लोग डिले चले, थोड़ा हम लोग लेट हो गए, बट इट्स ओके. ओके, लेट मी शेयर यू the syllabus also, so that you will be on the track.
Okay, yes, we are on the track. This is for the lab. ये theory का चलो. So यहाँ तक हम लोग किए थे. Then we have next topic, that is interconnection networking devices. Okay. So when we talk about this, एकदम brief में, पहले एकदम detail में था, अभी एकदम उसको brief में लेना है थोड़ा सा आपको. You all people must aware about the networking devices. Okay. So first of all, let me take a privilege to ask this question to you people, that what you know about the networking devices. How many networking devices you know? Okay. कौन कौन से networking devices आपको पता है? Yes, come on. Router switches, okay, very good. Router and switch और बोलो. Modems, very good. हो गए, तीन हो गए. और भी. These are the networking devices basically. Bridge, very good. और बहुत ही common devices. We have very common device which is used commonly used. Server is a part. थोड़ा सा अलग हो जाएगा. Yes, very good, very good. Someday. There is a hub. Okay, basically this is the device from which you can connect few computers. Okay, so this is a very common and which is a very basic device. Okay, yeah, we call it as a networking device. Okay, so अब आते हैं हमारे slide पर. Okay, so we have number of networking devices. Okay, so we have around मैंने 7 को list out किया हूँ. हालांकि इसमें से काफी सारे devices है which are not continuous, वो मतलब यूज नहीं होते, and their replacement has been arrived. Okay, so like जैसे कि आपका bridges है, और gateway भी यूज होता है, modem भी यूज होता है, router भी यूज होता है. तो ब्रिज ही आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि दूसरी इसकी फंक्शनलिटी दूसरे में भी अभी डाल दी गई. ओके, सो चलो एक एक करके देखते हैं. रिपीटर स्लाइड शो कर देता हूँ. So out of these networking devices, the very first device is a repeater. Okay, basically you have seen, आपने देखा होगा कि when if you are going through a road or if you are going through any highway, तो और आपकी बिल्डिंग के आसपास you have seen something like that, कि आप एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है, और यहाँ पर आपका ना एक ऐसा वायर जाता है, और यहाँ से छोटा सा एक डिवाइस आपने देखा होगा, और ये इसको कनेक्ट ऐसा होता है, और यहाँ से इसको कनेक्ट होके फिर ये. ठीक है, तो बेसिकली जो डिवाइस आपने देखा है वो डिवाइस आपका और कुछ नहीं बल्कि. Okay, this is for example, this is building A and this is building B. Okay, the distance between these two buildings are is maybe, चलो समझ लेते हैं 1 किलोमीटर, या चलो 1 किलोमीटर. ठीक है, अब आपका जो यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पे आपका सिस्टम है. नाउ दीस टू सिस्टम वांट टू कनेक्ट. ओके, दो सिस्टम्स को हमें कनेक्ट करना. Then what we have done, we have used the LAN cable. ठीक है, जो हमारा cat 5 केबल है तो हमने यूज किया. अभी जो केबल यहाँ से निकला, अब इसके अंदर जो सिग्नल था, okay, इसके अंदर जो सिग्नल था वो सिग्नल चल रहा है, चलते 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 क्या हुआ, थक गया. ठीक है, आपका उसका जो है ना अटेन्युएशन कम हो गया, और उसका पावर कम हो गया, और उसके सिग्नल क्या होने लगा, डिस्टॉर्ट होने लगा, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन. Okay, so the signal started distorting, and and this is very very important right now in order to continue the uh, continue the power of that particular signal. We need the boost. Okay, so अब उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिपीटर लगाना. ठीक है, मैंने यहाँ पे राउंड दिखा दिया. चलो आपका चलते 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 यहाँ पर आपका आधे रास्ते तक पहुंचा. ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नल का बूस्ट, सिग्नल का पावर कम होने लगा. So now what is required? We required we required one device which can accept the signal. It must boost the signal, attenuate the signal, and then
forward it to the opposite direction. ओके, सो रिपीटर इज अ वन डिवाइस जो कि सिग्नल को लेगा, उसको बूस्ट अप करेगा, उसको पावर अप करेगा, पावर अप करने के बाद उसको अपोजिट डायरेक्शन में वापस भेज देगा, फिर आपका वापस उसी उसी पावर से पहुंचते पहुंचते आपका रिसीवर। ठीक है, तो ये रिपीटर इस काम आते हैं, आपने अक्सर अक्सर जगह ऐसे टाइप के रिपीटर देखे। हम टू द मैंने उसकी एक्चुअल डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखा नहीं है, but you can easily understand. A repeater is an electronic device. This is an electronic device that receives a signal and retransmit it at a higher level. Okay? So it is receiving the signal over here. It is retransmitting. कहाँ कर रहा है retransmit? ये direction में retransmit कर in a higher signal. ठीक है? At a higher level or higher power or onto the other side so that the signal can cover longer distance. Okay, so ये only 500 मीटर कवर किए थे भाई साहब ने, हमने इसको थोड़ा सा बूस्टर किए, थोड़ा सा उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ताकत दे दी। now it can travel more 500 meters per distance. Okay, so it can connecting, it is traveling from A building to B building, that is approximately around 1 km. So this is just an example I'm giving to you people so that you can understand the function of repeater. Repeater क्या करता है? सिग्नल को रिपीट करता है, ठीक है? Whatever signal is coming from this particular direction, so it will receive that signal. It will retransmit the signal into another direction with the higher power, with the higher power, or we can say with the higher level or higher power. Okay, so that the signal can cover longer distance. Okay. रिपीटर हैव टू पोर्ट्स सो कैन नॉट बी यूज्ड टू कनेक्ट फॉर मोर देन 2 डिवाइसेस। अब बताओ रिपीटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं? इस चीज में 2 ही पोर्ट रहेंगे, एक तो आने का और एक दूसरा जाने का। चलो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, एक इमेज मैंने जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वहां से मैंने निकाल लिया। सो यहाँ पर आपका जो रिपीटर है दैट रिपीटर विल रिसीव द सिग्नल। तो ये हो गया आपका रिपीटर, समझ लो ये वायर आपका आया, यहाँ से चला गया अंदर, यहाँ से चला गया। तो so पोर्ट कितने रहेंगे इसके? ओनली 2 पोर्ट्स रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो। हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, फिर भी जितना हो सके हम लोग उसको कवर करें। ओके, सो रिपीटर के बारे में हुआ, मैं इसको एरिस करता हूँ। Coming to the next one, that is hub. Okay, heading शायद ऊपर चली गई इसकी। The next device is hub. Okay, so basically your hub is a device which is used for connecting multiple multiple computers. Simple देखो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। Example will help for the same. So basically it is a hub. Okay, अब जो basically होते हैं मार्केट में जो available, you know, these hubs are available with 4 ports, 8 ports, 16 ports तक भी available और ज़्यादा भी available। uh, basically your hubs are available at less number of ports, and we use normally it to the less number of ports, like 2 ports, 4 ports. Okay, so basically we have some internet connection like that. Okay, we can use this particular hub। मैं आपको छोटा सा एक scenario, थोड़ा सा example देता हूँ so that you will understand the function of hub। Okay, so basically it is a hub। Okay, हेलो सर। yes yes। सर आपकी सर आवाज आपके प्रॉपर नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड बहुत वॉइस। ज्यादा है। क्या क्या क्या? बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, आपकी वॉइस क्लियर समझ में नहीं आ रही है। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है? हेलो हेलो हेलो, अभी भी आ रही है बैकग्राउंड हाँ नॉइज? सर, पीछे से थोड़ी आ ही रही है सर। कोई यहाँ तो कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है।
हेलो हेलो। हाँ सर। आ रही है अभी आवाज? हाँ आवाज ठीक है थोड़ी। अभी ठीक है। पता नहीं पहले भी, अच्छा पहले मतलब ठीक थी आवाज, बाद में फिर थोड़ी सी में बैकग्राउंड नॉइज आ गया ऐसा। हाँ सर, ऐसे लग रहा था कि हाँ छोटी बच्ची कोई है, वो बहुत चिल्ला रही है पीछे से। अच्छा, इतना तो नहीं चिल्लाए मेरे बच्चे में। ओके चलो ठीक है। एक सेकंड। ओके तो हाँ ओके तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब छोटा बच्चा है वो, मोबाइल पे है एक्चुअली। सो हब के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। सो हब इज अ डम डिवाइस बेसिकली। हब इज अ डम डिवाइस। Why this particular networking device is called as a dumb device? मैं क्या लिखना चाह रहा था और क्या लिखा? हब इज अ डम डिवाइस। सो बेसिकली डम डिवाइस उसको बोलते हैं जो कि मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, और whenever the signal it is receiving any signal, so without inquiring about this particular signal, that where it is coming from and where it wants to go, okay, without inquiring about the signal whether it is coming from which device, from which system, and where it wants to go, it will broadcast the signal. It will broadcast the signal in all the direction and to all the systems. Okay, so we have this hub for example. So this is मशीन नंबर 1 विच इज कनेक्टेड। तो चलो यहाँ पे इसके फॉर एग्जांपल 4 पोर्ट वाला है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इट इज गेटिंग सम इंटरनेट सर्विस मे बी फ्रॉम हियर, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, चार सिस्टम, सो वी हैव कनेक्टेड 4 systems with this particular hub, okay. So now the scenario is that this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So we have these 4 systems which are connected with the hub, okay. Hub is a dumb device, as we say, that it does not inquire about the signal whether it is coming from which system and wants to go with which, ठीक है। इसलिए इसको और एक नाम दिया है जिसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी पोर्ट रिपीटर। लेट मी राइट हियर, मल्टी पोर्ट रिपीटर, ओके। अब इसको मल्टी पोर्ट रिपीटर इसलिए भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं, ठीक है। सो सिस्टम नंबर 1 wants to send some information to system number 4, okay? तो जब सिस्टम नंबर 1 will send the information or data to system number 4, then it will be received by, first it will be received by the hub, okay. Hub will receive it, okay, and when hub will receive it, it will not send this particular signal to the 4 number, ठीक है। होना तो ये चाहिए था आपका सिग्नल ऐसा ट्रैवल करते 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 4 नंबर पे जाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। Your hub is a dumb device, which is also called as multi-port repeater. So what it will do, it will broadcast the signal in all the direction or to all the system. तो यहाँ पर भी सेंड किया, यहाँ पर भी सेंड किया, और यहाँ पर भी सेंड किया, okay. Now understand the scenario of hub, okay. System number 1 has sent the signal or information to the system number 4, but accidentally or not, this is the feature of hub which will send the information to all the system. तो अब ये सिग्नल यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद में 2 के पास में आया, आपका पैकेट, आपका सिग्नल 2 के पास पहुंचेगा। नॉक नॉक इज देयर एंड द सिग्नल, ओके। हाँ, कहाँ से आए हो? बोले मैं सिस्टम नंबर 1 से आया हूँ। फिर पूछेगा सिस्टम नंबर 2, पूछेगा कहाँ पर जाना है, वो बोलेगा मुझे सिस्टम नंबर 4 पे जाना है। तो सिस्टम नंबर 2 बोलेगा बट आई एम नॉट द सिस्टम नंबर 4, आई एम सिस्टम नंबर 2।
So that packet or that signal will be discarded over here. Number one. Again, your signal will goes to the system number 3, will go to the system number 3's door and will knock. Who is there? I am the signal. Okay. कहाँ से आया हूँ? 1 से आया हूँ. कहाँ जाना है? Number 4 पे जाना है. But I am not number 4. I am number 3. Again, the signal will be discarded. Yeah, in this case, knock. System number 4 पूछेगा कौन कौन आया भाई, बोलेगा मैं सिग्नल हूँ. कहाँ से आया? नंबर 1 से. कहाँ जाना? नंबर 4 पे. ओके, आई एम सिस्टम नंबर 4, आप मेरे लिए हो. ठीक है. So that signal will be accepted. This is the case of this. I hope you can understand and you understand the function and how it works, your hub works. Okay. अब multi-port repeaters को क्यों बोलते हैं? Sometimes this question may be asked in the Viva examination also, that why it is called as multi-port repeater, because it is doing the function of repeater only. Okay. But the only difference is that in repeater we are having only two ports. Understand? We are having only two ports, that is in port and out port. We are having multiple ports. Okay, so that's why this is called as multiple ports का repeater भी बोलते हैं. Okay, ये क्या कर रहा है? यहाँ से ले रहा है और यहाँ पे दे रहा है. ठीक है, क्योंकि इसके पास में दो ही है खाली. यहाँ एक जगह से लेगा, एक जगह से देगा. और हब के पास में चार पोर्ट्स हैं. ठीक है, so it will receive the signal from one and will send to all. Will receive from one and will send to all. So that's why this is called as multi-port repeater. यहाँ तक पहले सबको समझा? या नहीं समझा पहले बताओ मुझे. हाँ सर समझा. ओके, अदर्स प्लीज. समझा आप लोग को? यस सर. ओके, मैं इसको इसके लिए थोड़ा सा इस अलग वे में लेके जाता हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड इन योर लेटर लाइफ, और आगे चल के कभी भी कोई भी आपको पूछ सकता है कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नेटवर्किंग डिवाइसेस, व्हाट इज रिपीटर, व्हाट इज हब, व्हाट इज स्विच, व्हाट इज राउटर. ठीक है, तो इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमको होना चाहिए कि फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते. ओके, तो चलो भाई, repeater complete, hub complete. Okay, so these are the two networking devices which are important. Okay, and these two devices are still used right now in this particular era. Okay, coming to the switch. Okay, हाँ चलो अभी हम लोग इसको रब नहीं करते हैं. We have next device. Okay, when we talk about the hub, it is also called as a dumb device. Okay, dumb device मतलब बहरा device है, कुछ सुनता ही नहीं है. ठीक है, सिग्नल आया सब जगह कर देंगे. अरे भाई, तो ये सिग्नल आया है नंबर 4 के लिए, बट नाउ इट इज बीइंग सेंड टू ऑल दी सिस्टम. ओके, नंबर 1 भेज रहा है नंबर 2 को, 3 को, 4 को. अगर ये 8 पोर्ट वाला होता तो साथ के साथ डिवाइसेस को साथ के साथ सिस्टम को चला जाता. अगर और नंबर ऑफ पोर्ट्स वाला होता तो उतने सारे सिस्टम को चलाएगा. You can just imagine the stupidity of this particular hub. Okay, तो उसी चीज को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए we have next device, that is switch. Okay, switch is called as intelligent device. Switch is called as intelligent device. Right, switch is an intelligent device. ये intelligent device क्यों है? इसमें एक फीचर है जिसकी वजह से ये intelligent है. ठीक है, अब वो क्या है? Okay, so we have this switch. Okay, switches 8 पोर्ट के होते हैं, 16 पोर्ट के होते हैं, 32 पोर्ट के होते हैं. okay, और बाद में 48 पोर्ट्स तक भी जाते हैं, और भी आगे जाते हैं switches, लेकिन यहाँ तक मैंने देखा. ठीक है, so basically जो switches होते हैं, these devices are the intelligent devices, and these devices are called as intelligent because it does not forward the signal like your hub does. Okay, hub की तरह ये सारे सिग्नल को सारे लोगों को भेजते नहीं बैठे. ये जिसका सिग्नल है उसी को भेजेगा. Your switch will send the signal to the intended system only. Okay, it is not going to send the signal to all the systems which are connected to the switch device. Okay, so let me take one example. Again, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो चलो 8 सिस्टम कनेक्टेड है हमारे पास में, एंड दिस इज माय स्विच डिवाइस. ओके, दिस इज द नेटवर्किंग डिवाइस. Switch is an intelligent device.
Hub is a dumb device. Hub is also called as multi-port repeater. Switch is intelligent device. Okay. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. So one wants to send some data to number 5. Okay. One wants to send some data, some information to system number 5. Okay. When one will send the data to the switch, what switch will do? Switch will maintain one table. Okay. एक टेबल मेंटेन करता है वो, ठीक है। तो टेबल मेंटेन करने के उस टेबल को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग टेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्विचिंग टेबल। In this particular switching table, all the information of IP addresses are stored. सारी information वहाँ पे store होती है। For example, case number 1. Okay. हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? स्विच पर थे, ठीक है। सो स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। Upon receiving a signal from any of the terminal, upon receiving a signal from any of the machine, it will just analyze that particular signal. Okay. So for example, we'll take one case that system number 1 wants to send some data or information to system number 5. Okay. When that particular signal or information or data will be received by the switch, the switch will analyze that particular packet. Switch will analyze that packet. It will ask the packet कहाँ से आया है, बोलेगा नंबर 1 से आया हूँ, ठीक है। अपने टेबल में एंट्री कर लेंगे। ओके। कहाँ पर जाना है? नंबर 5 पे जाना है। ओके, 5 की एंट्री कर लिया, ठीक है। मतलब उसकी उसकी उसके आईपी एड्रेस की एंट्री कर लेंगे कि भाई ये पैकेट था, यहाँ से आया था, यहाँ पर जाना है, इसका सोर्स था, इसका डेस्टिनेशन था। ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ से सिग्नल आपका रिसीव हुआ, स्विच ने रिसीव किया, it will send the signal to system number 5. It will send the signal to the system number 5 only. Okay. Why? Because we have already analyzed the packet and we came to know that this particular IP packet or this particular data or information or signal was only for number 5. So it is not going to send that particular information or data or packet to all the machine. Okay. Why? Because switch is your intelligent device. It is not a dumb device like your hub, which is sending the data or information to all the systems. Okay. So that is the intelligence in the switch is there, जो उसको इंटेलिजेंट बनाती है और स्विचिंग टेबल मेंटेन करके सारों की एंट्री करके अपने पास में। When next time, when if there's any signal which is coming from system number 1, which is coming from system number 1 and going to system number 5 again, then your switching table, your switch is already having that particular entry. तो उसको एनालाइज करने में और देखने में, चेक करने में, भेजने में आसानी होती है। आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना आगे, तो वो चीजें और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्विच का काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका हो गया स्विच। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? देखो मैं एक एक करके जो आ रहे हैं ना ये चीजें, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ का जो ड्रॉबैक था उसको हम लोग ने यहाँ पे रिमूव किया, ठीक है। तो स्विच ने रिमूव किया। अभी इसके साथ में स्विच में तो कोई ड्रॉबैक है नहीं वैसे, बट वी हैव वन मोर डिवाइस जो कि हमारा राउटर है। तो राउटर थोड़े से और अपर लेवल पे काम करता है, ठीक। तो राउटर के बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी इसमें और ज्यादा है, ठीक है। स्विच के बारे में समझा पहले? नेटवर्क स्विच, नो रिस्पॉन्स। हाँ सर समझा। अदर्स प्लीज। यस सर समझा। ओके। सो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हूँ स्विचेस के बारे में। नेटवर्क स्विच और स्विचिंग हब इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस
that connects to network segment. Is it about the तो टू नेटवर्क सेगमेंट को या दो सिस्टम्स को या मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. नेटवर्क ब्रिज के जैसे भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एंड ऑल दैट. जो भी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इट इज अ लेयर 2 डिवाइस. इट इज कॉल्ड एज लेयर 2 डिवाइस. ओके, बिकॉज ये आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है अकॉर्डिंग टू द OSI रेफरेंस मॉडल. स्टार्टिंग से अगर आप बॉटम से अगर उसको रीड करेंगे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. ओके, सो ये 7 लेयर्स में से जो आपकी नीचे से बॉटम से जो सेकंड लेयर है दैट इज डेटा लिंक लेयर. तो आपका जो स्विच है वो उस लेयर पे काम करता है. यानी हाइपोथेटिकली उसको उस पर्टिकुलर लेयर पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. That's why it is called as layer 2 device. Okay, we have another device also. Okay, आपके राउटर्स वगैरह है वो दूसरे डिवाइसेस पे आपके काम करते हैं. इसके बाद में आते हैं हम लोग नेटवर्क ब्रिज पर. ओके, बेसिकली जो नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट्स मल्टीपल सेगमेंट्स एट द. यहाँ पर एक डायग्राम मैंने रखा था, शायद वो नहीं है. तो बेसिकली नेटवर्क सेगमेंट्स में आप कुछ डायग्राम से बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. So basically, just understand that we have this computer system, we have this computer system, we have this computer system, and we have this computer system. Okay, when multiple computers are connected, okay, चलो ये एक मैंने एक लाइन खींचा. So this is my backbone cable. I call it as a backbone cable. ठीक है. तो ये system number 1 इसको connected है, system number 2 भी इसको connected है, system number 3 is also connected with it, system number 4 is also connected with this particular segment. Okay, so this is my कंप्लीटली इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय वन सेगमेंट. तो ये मेरा क्या है, नेटवर्क सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 1. अब ये मेरी लाइन आगे गई. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे कुछ सिस्टम कनेक्टेड है. ठीक है, यहाँ पर कुछ सिस्टम है, यहाँ पर कुछ सिस्टम है. ठीक है, ऑल द सिस्टम्स आर अगेन इट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क. अगेन दिस इज माय नेटवर्क सेगमेंट. ओके, सो हो सकता है ये पास में नहीं हो बल्कि अलग अलग जगह पर. ओके, ये सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2. अब ये मैंने लाइन इसके लिए रखा हूँ बिकॉज ऑल द सिस्टम्स आर, वो नेटवर्क में तभी आएंगे जब वो कनेक्टेड रहेंगे, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये नेटवर्क में है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये सिस्टम, ये सारे सिस्टम, ये जो चारों सिस्टम यहाँ पर है, ऑल दीज 4 सिस्टम्स आर इन द नेटवर्क. ओके, इट मींस व्हाट, दे आर कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क्स, दे आर कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर. इसका यही मतलब हुआ ना. मेरा सिस्टम पे मैं अगर एंटर करूंगा www.google.com. ठीक, सो जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, मैं जब google.com जब ओपन करता हूँ तो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलता है. ठीक है, I will get the response from the google.com. Why so? Because my system is connected to the Wi-Fi. Wi-Fi is connected to the service provider. Service provider is connected to the server. ठीक है, गूगल का सर्वर से, मतलब कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्टेड है. So when I say that the system is in the network, it means that somehow it is connected to the network. Okay, somehow it is connected to the other devices which are present in the world. Okay, so basically this is the segment number 1, this is segment number 2. So ऐसे दो नेटवर्क सेगमेंट्स को मतलब कि उनको कनेक्ट करने के लिए पहले एक नेटवर्क ब्रिज नाम का डिवाइस यूज हुआ करता है. बट नाउ ऑल दीज फंक्शनैलिटीज आर ऑलरेडी देयर इन आवर स्विच एंड राउटर्स. तो अभी ये डिवाइसेस बहुत कम, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी नेटवर्क सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलेगी. सम देखो, अ ब्रिज एंड अ स्विच आर वेरी मच अलाइक, मतलब कि एकदम स्विच के जैसा ही है. ठीक है, अब उसको स्विच में ऐड कर दिया गया तो स्विच आ गया और आपका नेटवर्क ब्रिज चला गया. ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द ऑब्सोलीट डिवाइस. ओके, इट इज नॉट यूज्ड राइट नाउ. ओके, अभी आजकल में ये यूज नहीं होता है. A switch being a bridge with a numerous port. So बस इतना है कि स्विच जो आपका है उसके अंदर नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा होते हैं. नंबर ऑफ पोर्ट स्विच ज्यादा होते हैं, मे बी 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, 48 हुआ एंड सो ऑन. ठीक है, बट ब्रिज के अंदर उतने पोर्ट्स नहीं होते. So bridge can analyze incoming data packets to determine if the bridge is able to send the given packet to the segments or not. ठीक है, so basically देखा जाए तो वो स्विच ही है और पहले वो ऐसा नेटवर्क ब्रिज यूज को मतलब बोल के यूज करते थे. दो नेटवर्क सेगमेंट को, दो नेटवर्क सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट आपका डिवाइस ऐसा है जो एकदम आता है. बट यू मस्ट अवेयर के नेटवर्क ब्रिज नाम के लिए एक प्राणी है जो कि पहले यूज होता था, लेकिन अभी चल के उसकी फंक्शनैलिटीज नाउ दे आर इट हैज बीन एडेड इनटू द स्विचेस एंड अदर डिवाइसेस. सो इसके लिए दिस डिवाइस इज राइट नाउ ऑब्सोलीट डिवाइस.
Okay, so this is the third device we were talking about. This is a network bridge. Okay, basically bridge से आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, the bridge which join two section. Okay, वैसे हमारे दो नेटवर्क सेगमेंट है, दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम करेंगे, यहाँ की चीजें यहाँ से फॉरवर्ड करें. आता हमारा नेक्स्ट डिवाइस दैट इज राउटर. ठीक है, राउटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस. सो राउटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के पढ़ते क्या अभी तो स्टार्ट करें. तो बेसिकली आपका जो राउटर है, simply I will say one statement that router is a device which routes between the network. It is not written over here. A router is a device which routes between the network. ठीक है, routes between the network. Okay, दो नेटवर्क्स के बीच में राउटिंग का काम करता है. अब देखो यहाँ पर आप बोलेंगे सर वो काम तो स्विच भी कर रहा है आपका, आपने स्विच रखे थे, स्विच चेक करता है कहाँ से आया है, अच्छा यहाँ से, कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, तो ये काम तो ये भी कर रहा है, बट नॉट लाइक दैट. ओके, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ डिवाइसेस इन बिटवीन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपको यहाँ से सीएसटी जाना है. ओके, बट सीएसटी जाने के लिए आपको रास्ता मैंने बता दिया है कि यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो बाय सिटी बस, यू कैन गो बाय योर बाइक, यू कैन गो बाय योर फोर व्हीलर, something like that. So we have lot of options to for CST. Okay, but उसमें कहाँ पर आपको कौन सा पाथ लेना है ये आपको पता है नहीं. तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले गए पहले नेरुल. ठीक है, तो नेरुल में आपको पता है वहां पर क्या है, दो लाइन्स है. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड के हाउ योर राउटर इज गोइंग टू वर्क. ओके, तो दूसरे लोग काम नहीं कर सकते. अब यहाँ से हम लोग पहुंच गए, वी रीच एट नेरुल. ओके, at Nerul we have two options, either we can go to the Thane line and we can go to the CST. Okay, so this is our responsibility and someone should tell us that okay, you have to go and you have to catch the train which is going towards the CST, not going towards the Thane. ठीक है, so we have branches over there, so कोई बताने वाला चाहिए उस टाइम पे. ठीक है, अब उसके बाद में फॉर एग्जांपल आप कुर्ला चले गए, तो कुर्ला में भी हमारे पास में CST जाने के है, लेकिन वहां पर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक चर्च गेट जाती है लाइन और एक सीएसटी जाती है. ओके, सो वी हैव टू ऑप्शंस अगेन. सो दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी शुड टेल समवन और द पर्सन हु इज गोइंग दैट कि भाई आपको ये रास्ते से जाना है, सो दैट यू कैन रीच टू द सीएसटी. ओके, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड के रूट में डिफरेंशिएट करना, रूट सही बताना, यहाँ से कैसे जाने का, वहां से कैसे जाने का, एवरीथिंग तो आपको बताना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ जैसा आपको समझाने के लिए. सो ये हमारा एक नेटवर्क. ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक अपर व्यू ले रहे हैं. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल व्यू लेते हैं. ठीक है, टॉप व्यू लेते हैं. सो वी हैव नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हु आर कनेक्टेड इन दिस. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सो मेनी कंप्यूटर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क. आई से network 1. Okay, this is network 2, this is network 3, this is network 4, this is network 5, this is network 6, this is network 7 and यहाँ पर एक सिस्टम है. ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, ये हूँ मैं. ठीक है, ये हूँ मैं. ठीक है, यहाँ से मैंने एंटर किया अपने सिस्टम में www.google.com. अच्छा, पहले ये सबको मैं कनेक्ट कर देता हूँ. ऑल दीज आर कनेक्टेड. ठीक है, ऐसे भी कनेक्टेड है, यहाँ वहां से कनेक्टेड है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वेब www क्या है आपका, जितने दुनिया में जितने सिस्टम्स हैं सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो ऑल दीज सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड बिकम्स अ ग्लोब. लेके आपका www वर्ल्ड वाइड वेब आपका ऐसे ही तो बना है. So this is me, okay, and I'm going to enter the www.google.com. Okay, so google.com की जब मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ से पैकेट मेरा निकला. थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, फोकस करो. तो मेरा यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया. अब यहाँ से अच्छा और भी रूट है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रांचिंग कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ब्रांचिंग कर लेता हूँ बिकॉज हमारा वर्ल्ड वाइड वेब बहुत वो है. तो इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे और एक नेटवर्क. ठीक है, सो ऑल दिस आर नेटवर्क. ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम. आई एम टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली नेटवर्क. सो ये सारे मेरे नेटवर्क्स हैं. ठीक है, तो अब मेरा जो पैकेट यहाँ से निकला, यहाँ पर. अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद में अब मैं ये वाला रूट लूँ कि ये वाला रूट लूँ, कौन बताएगा मुझे.
अरे बोलो कौन बताएगा? Obviously my router is going to tell me that के which path you should select, which path you should select in order to reach your destination. Okay, तो मेरे पास में ये वाला भी रूट था और ये वाला भी रूट था, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस टू रूट आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। अच्छा, ये वाला रूट भी यहाँ पे जाता है, ये वाला रूट भी यहाँ पे जाता है, लेकिन दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दी two algorithm. One is the distance vector routing and second is link state routing. Those two algorithm we'll learn later. Okay? हम लोग को आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पहुंच गए, चलो ये वाला रूट ले लीजिए, ये वाला रूट आपका शॉर्टेस्ट था। अब यहाँ पर आने के बाद में अगेन हमारे पास में दो रूट है, ये भी रूट है और एक ये रूट है। अब आपका जो गूगल सर्वर है वो यहाँ पर है, तो ये वाला रूट नहीं लूंगा मैं, बल्कि ये वाला रूट लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में अगेन मेरे पास में दो ऑप्शन है, सो माय राउटर इज गोइंग टू टेल मी दैट व्हिच रूट आई शुड सेलेक्ट। ओके, सो ये वाला या ये वाला, ठीक है। So I can go to this way also and I can go to this way also, ठीक है। I will not go to this way because my Google server is there. अच्छा, ये बता हम लोग को पता कैसे चलेगा, बिकॉज ईच एंड यहाँ पर जो डिसाइड करने वाला वो कौन है, देयर इज अ राउटर, देयर इज अ राउटर over here, ठीक है। at each and every between each and every two network between every two networks there is a router. Between every two network there is a router who is routing between the network, as I told you earlier only. मैंने आप लोगों को एक पहला स्टेटमेंट सबसे पहले लिख के ये दिया हूँ, राउटर राउट्स बिटवीन द नेटवर्क, ठीक है। दो नेटवर्क के बीच में राउटर बैठेगा और राउटिंग करेगा, ठीक है। तो इसी का आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो there's a router, there is a router and there is a router and there is a router also, यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है, ठीक है। तो ये राउटर के पास में एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग टेबल। क्या होती है? राउटिंग टेबल। एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट राउटिंग टेबल? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज राउटिंग टेबल एंड व्हाट इट डज एक्चुअली? नो सर, नो आइडिया। राउटिंग टेबल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसा आप लोगों को मैंने स्विचिंग का बताया कि वी हैव स्विचिंग टेबल, वी हैव स्विचिंग टेबल इन द स्विच। ओके, तो स्विचिंग टेबल बेसिकली क्या करता है, वो भी सारे सारे पैकेट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास में स्टोर करता है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, कौन सा पैकेट, उसका सोर्स क्या था, उसका डेस्टिनेशन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, और कौन सा मतलब उसकी इंफॉर्मेशन उसके बाद, ठीक है। वैसा ही हमारा राउटिंग टेबल है। तो राउटिंग टेबल बेसिकली मतलब सारे पैकेट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करेगा, तो फॉर एग्जांपल नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ से आया है सोर्स, कहाँ जाना है डेस्टिनेशन, कौन सा रूट लेके जाएगा, कौन सा राउटर। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है राउटर नंबर वन, ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से देखो, कि आप लोग ये समझे तो राउटर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। वी हैव राउटर टू ओवर हियर, राउटर थ्री ओवर हियर, ठीक है। हर दो नेटवर्क के बीच में राउटर काम। फिर यहाँ पर आपका राउटर फोर है, यहाँ पर राउटर फाइव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका पैकेट यहाँ से आया, ठीक है। तो पैकेट नंबर ए, पैकेट नंबर ए, हेलो, ओके, सो योर पैकेट ए इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेटवर्क वन। तो पैकेट नंबर ए, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पैकेट ए, ये पैकेट ए, ठीक है। अब पैकेट ए यहाँ पर आया, आने के बाद में उसकी एंट्री हुई, कहाँ से आया, तो फॉर एग्जांपल कहीं से आया है, तो उसके मैं लिखता हूँ एक्स, एक्स से लिख आया है, ठीक है। कहाँ जाना है उसको समझ लो, वाई वाई पे जाना है, ठीक है। तो उसका डेस्टिनेशन है वाई वाई, ठीक है। अब यहाँ पर वो राउटर कौन सा लिया इसने, तो राउटर की इन्फॉर्मेशन, ये इसने राउटर वन के अंदर ये आईपी एड्रेस लिया। तो इस तरीके से अभी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, बट जैसे जैसे आगे टाइम जाएगा वैसे आप लोग इसको समझेंगे आराम से। So I mean to say that routing table stores all the information related to each and every packet, ठीक है। Whatever packet, I know whichever packet is coming, so उस packet की complete information is getting stored in this particular routing table, ठीक है। तो routing table में ऐसी information store है। So हाँ, हम लोग कहाँ थे अभी, हम लोग कहीं और ही निकल गए थे। So router is a device which routes between the network, okay, which takes the packet, जैसा बोलते हैं ना, मेरी स्क्रीन आ रही है पर ओके।
So I'm the, for example, I'm the router. Okay, so I'm taking one packet from here. ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड हटाता हूँ थोड़ा सा. Okay, I'm taking packet from my left hand, ठीक है, and I'm giving to the right hand, ठीक है, but I've taken the packet from the left hand, okay, और उसको पूछूंगा भाई आपको ये देना किसको है, ठीक है, सो वो बोलेगा मुझे ये मुझे फला फला पर्सन को देना है, ठीक है, आई विल गिव दैट पर्टिकुलर पैकेट टू दैट पर्सन ओनली, ओके, आई विल नॉट गिव टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, सो आई एम द राउटर, ओके, सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड इन दिस वे ओनली कि अगर मैं ए से ले रहा हूँ और मुझे बी को देना है तो मैं बी को ही दूंगा, ना कि सी को, डी को, ई को दूंगा, ठीक है, सो दैट इज द राउटर वर्किंग बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क, ओके, इस तरीके से वो अलग अलग नेटवर्क के बीच में काम करते हैं. आई थिंक एक सेकेंड, ये लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिकॉज रेहान मैम इज क्वाइट बिजी, सो आई कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड विल थोड़ा आप लोगों में जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू थोड़ा सा टोपोलॉजी भी करेंगे, ओके, एक सेकेंड. Okay. Okay. So regarding this router, the router is an electronic device again. Again, this is a networking device, electronic device here basically that interconnects two or more computer networks and selectively interchanges packets of data. Interchange the packets of data between them. Okay, so it is taking, router is taking the packet from यहाँ से लेगा और यहाँ पे देगा. अब अच्छा, अब यहाँ से यहाँ लेगा और कहाँ देगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have number of computers over here, ठीक है, so all are connected, 1 2 3 4 5 6 all are connected, ठीक, तो समझ लो आपका पैकेट यहाँ से आया है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ठीक है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, ओके, और ये जाना है बी के पास में, ओके, सो ए से बी को आपको देना है, so your packet A will come, your packet will come from this particular A system, यहाँ से A से आया और ये लिंक से होते 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 हमारे पास में राउटर के पास पहुंचा, ठीक है, राउटर विल एनालाइज, ओके, बिकॉज एक पैकेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है लाइक सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो सोर्स का हम लोग के पास में है, डेस्टिनेशन भी है, तो राउटर विल चेक एंड एनालाइज द पैकेट वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम ए, कहाँ जाना है, तो बी के पास में जाना है, सो बी विल चेक बिकॉज योर राउटर इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, so B, so router will check whether your B system is present in this network or not. अगर B system अंदर present है, just try to focus. If the system B is already present in the network, then only it will forward the packet to this particular network only. अगर अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये B यहाँ पे नहीं है, ठीक है, B यहाँ पे नहीं है, तो B जब नहीं है यहाँ पे तो आपका राउटर यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, राउटर फॉरवर्ड नहीं करेगा, नहीं, ये हमारे राउटर का काम है, ठीक है, तो राउटर बेसिकली एनालाइज योर पैकेट, router will analyze your packet and will check what is the destination and that particular destination is present in the network or not, okay, if it is present then only it will forward the packet to that particular network, otherwise it will not forward, okay. So it is also not necessary that it is only connected to two network only, हो सकता है कि ऊपर भी एक नेटवर्क कनेक्टेड हो सकता है इधर और एक नेटवर्क कनेक्टेड हो सकता है इधर और एक नेटवर्क कनेक्टेड हो, तो वो हर जगह पे चेक करेगा कि भाई ये यतीम का कोई है या नहीं, ये बंदे का कोई है क्या नहीं, ये डेस्टिनेशन नाम का कोई है, तो हर जगह पे चेक करेगा, और वो चेक कैसे करेगा, सबको जाके थोड़ी पूछेगा, उसके पास में तो राउटिंग टेबल है, एंड फ्रॉम दैट राउटिंग टेबल इट विल कम टू नो कि ये वाला जो मतलब के डेस्टिनेशन है ये कौन से पोर्ट पर प्रेजेंट है, बिकॉज राउटर जो होता है, राउटर के भी तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं ना,
1 2 3 फॉर एग्जांपल बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो इट विल मेंटेन द इंफॉर्मेशन कि हाँ कल मेरे पास में पैकेट आया था ए से और जाने वाला था बी को, और बी जो था वो पोर्ट नंबर 2 पे था, एक नंबर पे नहीं था, तो पोर्ट नंबर 2 फॉर एग्जांपल ये है, तो इट विल फॉरवर्ड द पैकेट टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क जहाँ पर बी प्रेजेंट। तो जस्ट कलेक्टिवली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ खाली कि जो आपका राउटर है इट इज वेरी वेरी पावरफुल डिवाइस एंड इट विल एनालाइज योर पैकेट, इट विल फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल ओनली। उसके पास में खजाना है, उसके पास में ट्रेजर है, from that particular information, from that particular routing information or routing table, it will forward the packet to that particular network only। ठीक है, थोड़ा सा एक लास्ट डायग्राम आप लोग को थोड़ा और समझाने के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे डायग्राम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फिर भी चलो मेरा दिल नहीं भर रहा है आप लोग से। ये हो गया आपके 3 नेटवर्क, ठीक है। फाइनली ये आपका राउटर कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, पोर्ट नंबर 1 चलो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये जो आपका नेटवर्क 1 है ये पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है, नेटवर्क नंबर 2 आपका पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है, एंड यूर नेटवर्क नंबर 3 इज कनेक्टेड टू योर नेटवर्क नंबर 3 इज कनेक्टेड टू पोर्ट नंबर 3। ठीक है, तो 3 पोर्ट पे 3 कनेक्ट है। अब एक पैकेट आपका नेटवर्क 1 में से एक पैकेट निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, राउटर चेक करेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है, डेस्टिनेशन अगर कभी नेटवर्क नंबर 3 में है तो वो पैकेट को यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा, अगर मालूम पड़ा पैकेट नेटवर्क नंबर 2 में है तो फॉरवर्ड यहाँ पे करेगा, एंड सो ऑन। तो आपका राउटर क्या कर रहा है, जैसे एक बंदा है जिसके बहुत सारे हाथ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाथ है, ठीक है, तो एक यहाँ से ले रहा है, यहाँ पे दे रहा है, वहां से ले रहा है, यहाँ दे रहा है, इट्स लाइक दैट यू कैन इमेजिन। ओके, सो यहाँ पर हम लोग राउटर को जरा खत्म करते हैं, राउटर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा। अच्छा और इसके बाद में कौन सा है, गेटवे। वी हैव वन मोर डिवाइस दैट इज गेटवे। ठीक है, तो इसी हम लोग को स्पेस मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेटवे। जहाँ तक as I've already told you that के इसके आगे का जो लेक्चर है, I'm going to take this lecture because I am quite busy with some scholarship work, so I'll be taking this particular session, and those who are joining right now, तो ठीक है ज्वाइन करो। we are continuing with the networking devices topic, okay, so चलो कंटिन्यू करते हैं। So we have next device, यहाँ पर मैं मेन शीट पर लेके जाता हूँ so that you will of course understand. So repeater done, hub done, switches done, bridge done, router done. We have next one that is gateway. So gateway is a device which is used to उसका definition हम लोग हमारे एक सर ने बताए थे, which is used to get away from the network। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे दो नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए गेटवे आपका यूज होता है। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और ओरली मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नॉट बाय स्लाइडिंग एंड नॉट बाय थियरी वगैरह से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही से समझ लो और उसको याद रखो, एंड यू विल फाइंड सम ऑफ दी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है ऊपर नीचे क्योंकि हर एक की थिंकिंग अलग अलग है, तो उसके हिसाब से बट कोर कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। ठीक है, तो गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड between the two network segments, which is used between the two network segments. This is segment number 1, this is segment number 2. Okay, so this is the network, we have number of systems which are connected, we have number of systems which are connected. Okay, तो ये जो हमारा गेटवे है, ये गेटवे दो नेटवर्क सेगमेंट के बीच में काम करता है, लेकिन एज अ ट्रांसलेटर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर काम थोड़ा सा अलग है, इट एक्ट एज अ नेटवर्क ट्रांसलेटर ऑल्सो। लेट मी शो यू। गेटवे may contain devices such as protocol translator, your honor, point to be noted, okay,
protocol translator. Second, impedance matching devices. Number 2. Okay. Then apart from forwarding the packets from one network segment to another network segment, your gateway may contain the devices like protocol translator. Number 2, impedance matching devices, दोनों की synchronization के लिए rate converters, okay, then fault isolators or signal translator as necessary to provide system interoperability. मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच में ये एज अ नेटवर्क ट्रांसलेटर यानी कि प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर. फॉर एग्जांपल आपका ये जो नेटवर्क सेगमेंट है, ये इसकी टोपोलॉजी, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है, इसकी टोपोलॉजी अलग है. ठीक है, तो पैटर्न इज डिफरेंट और इसका पैटर्न डिफरेंट है. ठीक है, अब जब दो डिफरेंट पैटर्न के हैं, उनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग है, वहां पर फाइल सिस्टम हो सकता है कुछ अलग यूज किया गया हो, तो ऐसी जगह पर ये आपका जो गेटवे है वो काम करता है. दोनों के बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में वी कॉल इट एज अ मांडवली. यू नो व्हाट हैपेंस इन द मांडवली. ओके भाई, दो पार्टी के बीच में क्या होता है, एक बंदा होता है जो दोनों की बात को क्या करता है, थोड़ा सा मतलब सेटलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, या फिर जिसको बोलेंगे हम लोग, एक और बंदा आ गया जो कि दोनों के, एक फॉरेनर है एक इंडियन है, ये उसकी बात समझ नहीं सकता और ये उसकी बात समझ नहीं सकता. ठीक है, तो बीच वाला जो बंदा रहेगा वो ट्रांसलेट करेगा. तो बीच यहाँ से जो पैकेट आएंगे वो इसको समझेंगे नहीं. The packets which are coming from segment number 1 cannot be understood by segment number 2 system. Okay, so what your gateway will do, your gateway will do the translation का काम for segment. तो समझाएगा, देख भाई इसने पैकेट भेजा है, इसका ये है. ठीक है, हो सकता है the format, the packets which are coming from the segment number 1 having different file format, having different forms. Okay, so in order to convert those packets into the proper format which can be easily understood by the segment number 2 is being done by the gate. ये सारे काम आपका फॉल्ट्स है. ठीक है, रेट कन्वर्टर यहाँ का फॉर एग्जांपल आपका सेगमेंट नंबर 1 में जो सिस्टम नंबर ए है वो आपके 5 पैकेट पर सेकंड के रेट के हिसाब से भेज रहा है. ठीक है, और जो सेगमेंट नंबर 2 में जो सिस्टम है, तो इट हैज द कैपेबिलिटी to send the signal only 2 पैकेट्स पर सेकंड. वो 5 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से भेज रहा है, ये 2 पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से. तो ऐसा नहीं, इसको क्या करेगा, दोनों के बीच में क्या करेगा, सेटलमेंट करके देगा. तो दिस इज लाइक अ डिवाइस विच सेटल बिटवीन द टू नेटवर्क सेगमेंट देयर अंडरस्टैंडिंग. और उनके लिए जो प्रॉपर टेक्निकल टर्म है वो ये है. Gateway may contain devices such as protocol translator for synchronization purpose, impedance matching devices, impedance दोनों की understanding मैच कराने के लिए, rate converter, सॉरी ओके. सो ये आपका जो गेटवे डिवाइस है उसके अंदर ये सारे छोटे छोटे मतलब के सब डिवाइसेस होते हैं इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज बिटवीन द टू सेगमेंट, टू सेक्शंस. ओके, तो ये हमारा गेटवे के बारे में था. अब लास्ट डिवाइस हम लोग फटाफट लेते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन सो मच टाइम फॉर दीज नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि टाइम लगता ही है बेसिकली इसको. वी हैव लास्ट डिवाइस. अच्छा, यू कैन सी द डायग्राम यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा जो नेटवर्क है, जैसे कॉर्पोरेट लैन नेटवर्क. ओके, और ये हमारा ISDN पब्लिक ISDN नेटवर्क है. तो दोनों के बीच में गेटवे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ के जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है वो अलग है, यहाँ के अलग है, दोनों के अलग अलग है. दोनों का रेट मतलब कि जो रेट ऑफ ट्रांसफर, रेट ऑफ रिसीविंग, ये सब अलग है. तो दोनों के बीच में जो आपका गेटवे है, ये दो नेटवर्क के बीच में, अगर दो सेगमेंट के बीच में काम. ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इसको यूज करते हैं. अब आते हैं हमारा मॉडम पर. ठीक है, मॉडम इज द लास्ट डिवाइस विच इज वेरी वेरी सिंपल डिवाइस. बहुत कम यूज होता है, अभी पहले तरह ज्यादा यूज होता था, अब थोड़ा कम यूज होता है. ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट डिवाइस, दैट इज मॉडम. Basically a modem is the combination of modulator and demodulator. Okay, you might have seen the telephone line
आप में से किन किन के घर पर अभी भी टेलीफोन लाइन है? BSNL, MTNL? किसी के घर पे नहीं है? किसी के घर पे नहीं, बिकॉज अभी अभी टेलीफोन का जमाना ही नहीं रहा आपका। अभी तो सबके घर पे मतलब के फोन्स है, ओके, वायरलेस है, सब कुछ लाइक दैट है। तो पहले जब टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, MTNL है, BSNL है, ठीक है, तो उस लाइन के थ्रू भी इंटरनेट पहले लेते थे, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इंटरनेट लिया था, सो आई टुक इंटरनेट फ्रॉम MTNL लाइन। द लाइन जो टेलीफोन लाइन जो आती थी, तो उसको हम लोग को पहले मॉडेम में लगाना पड़ता था। मॉडेम में लगाने के बाद में डायल करें। मॉडेम में लगाने के बाद में वहां से फिर हम लोग को एक लैन केबल निकाल के फिर उसको हमारे डेस्कटॉप में लगाना पड़ता। So basically what is happening, the telephone line which is coming to you, that is nothing but the analog signal, right? The signal which is coming from the Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, or telephone, or sorry, MTNL, तो महानगर टेलीफोन से जो भी लाइन आ रही है, so that is the analog signal, right? तो एनालॉग सिग्नल को अगर आप डिजिटल कंप्यूटर में डाल देंगे तो क्या होगा बोलो? Your analog signal cannot be understood by the computer system. So what we have to do, we need we need one device which can understand the analog signal, and it will convert the analog signal into the digital signal, and that digital signal will be given to the computer system that can be understood by the computer. Okay, तो हमारा मॉडेम वैसे ही काम करता था, ठीक है। तो इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को यहाँ पर कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, और डिजिटल सिग्नल आपका कंप्यूटर यूज करता था, ठीक है। फिर कंप्यूटर से जब कोई रिस्पॉन्स जाता था, तो कंप्यूटर सिस्टम का जो डिजिटल सिग्नल है वो वापस से कन्वर्ट होके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता था, और वो एनालॉग सिग्नल फिर आपकी टेलीफोन लाइन के थ्रू, ठीक है। सो इट वाज द डिवाइस दैट इज मॉडेम, जो कि अभी लुप्त तो हो गए हैं, अभी गुम हो गए हैं और ऑब्सलीट हो गए हैं, अभी दिखते नहीं है, बहुत कम। कहीं कहीं पर अगर होगा तो कांट से, बिकॉज ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन एरा, जो कि हमारा एकदम लेटेस्ट टेलीकम्युनिकेशन एरा है, and because of this particular era we don't have any requirement of the MTNL, BSNL, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मॉडेम वो हमारा डिवाइस है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। See this one, the line which is coming, that is a sinusoidal wave, analog signal, okay, analog signal which is being converted from analog to the digital signal, and your digital signals are nothing but the 011101, okay, and your system will understand only digital signal. Again, when the response will go to the modem, that 101011, like that signal will be again converted into the analog signal, ठीक है। तो आपका ये एनालॉग में कन्वर्ट, इतना ही है खाली आपके मॉडर्न में, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके मॉडर्न आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो एक बार छोटा सा एक 5 सेकेंड का एक लोग वो लेते हैं, रिकैप लेते हैं कि व्हाट वाज देयर इन द networking devices. So we have repeater, we have hub, switch, bridge, router, gateway and modem, ठीक है। छोटा सा रिकैप, रिपीटर सिग्नल्स को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। when the signals quality, सिग्नल्स का पावर, सिग्नल को बूस्ट अप करना होता है, सिग्नल्स की क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो at that time we required networking device, that is repeater. So repeater will repeat the signal, will repeat the same signal and will forward into the another direction, ठीक है। It has only two put, in and out. Second is hub. Hub is called as the dumb device. The dumb device समझ में कुछ नहीं आता है, कहाँ भेजना क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। It will receive the signal from one system. It will receive the signal from one system and will send to all the port. ठीक है, तो सबको भेज दिया, तो जिसको नहीं भेजना था उसको भी मिल गया। Switch. Switch is an intelligent device. अच्छा, hub is also called as multi-port repeater. After that switch, we have a switch device which is an intelligent device which analyze the packet and send to the destination system only, okay. We have next as a bridge. So bridge basically connects two network segment, that's all. Router routes between the network, okay. So when we are having multiple networks, so it works between them and it will find the packet where it is going, and it maintain the routing table also,
Then we have gateway, which act as a protocol translator, rate converter, and all that. It has some devices inside the gateway which which act as a, it is same as your switch only, but has additional features also. Okay. And after that, the last device is modem, which is a combination of modulator and demodulator, which converts the analog signal into the digital signal and vice versa. That's all for the networking devices. Okay. एक 2 मिनट्स का 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक टोपोलॉजी के एक दो टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे. सो विल कंटिन्यू फॉर मोर 15 मिनट्स. ठीक है, 11:30 को मैं आप लोग को छोड़ दूंगा. देन यू कैन रिलैक्स फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, और उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो 2 मिनट्स. ओके, 2 मिनट्स आओ. सो ज्यादा नहीं, हम लोग दो 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 टोपोलॉजीज, अगर हो सके तो दो टोपोलॉजीज कवर करेंगे. एंड दीज टोपोलॉजीज आर नॉट देयर इन, these topologies are not in my slides. I'm going to explain you with the help of my pen paper only. तो देखो, नेटवर्क टोपोलॉजीज ये आपके सिलेबस में है. ठीक है, शॉर्ट में ही है लेकिन है. तो इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. सो एवरीवन रेडी? बोर तो नहीं हो गया आप लोग? मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो गए. एक सेकेंड. Okay, so coming to the topologies, this is 11:20 already, so we can at least we can cover two topologies in 5 minutes, or if even time allow, then we can cover three topologies, one more topology. Okay, so first of all, let me know that you have any idea about topology. What is actually topology? How you can explain the topology? What is there in your mind? Someone from your side. शोएब माइक ऑफ कर ले. Hello. हेलो. यस सर. आप राजीव बोलो ना, आप कुछ बोल रहे थे. मैंने शोएब को माइक ऑफ करने बोल रहा था सर. उसका माइक ऑन था तो आवाज अच्छा नहीं आ रही थी आपकी. अच्छा अच्छा, ओके ओके.
Okay, anyone from your side can explain about the topology, or you can explain, or you can just at least say about the topology. What is there in your mind? Okay, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. So basically, topology is nothing but the structure. We can say it is nothing but a structure or the pattern, okay, or the the way we are arranging our components, okay. So basically, it is a structure or a pattern or a way or a fashion in which we are going to connect our network component, okay. What are our network component? For example, um, these are my computers, okay. So if I will connect these computers in one line, okay, एक लाइन में अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये एक पैटर्न हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया. इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दीज कंप्यूटर्स इन अ रिंग वे, ठीक है, थोड़ा सा एक सर्कल वे में अगर मैं कनेक्ट करूंगा, सो तो अगर मैं इस पैटर्न में इसको अगर कनेक्ट करता हूँ तो ये एक अलग, मतलब एक अलग पैटर्न हो गया. तो जस्ट मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ कि दीज आर दी डिफरेंट पैटर्न इन विच वी कैन कनेक्ट, ओके. अगर मैं चलो थोड़ा सा कुछ इस वे में लेता हूँ कि आपका ये डिवाइस इस तरीके से 2 और 3, थोड़ा सा कुछ ऐसा शेप में मैंने लिया. सो दिस इज डिफरेंट पैटर्न, ओके. सो वी कैन हैव डिफरेंट पैटर्न, we can have different pattern from which we can connect the components of the network, ठीक है. तो मैंने on नहीं किया. So these are the different structure, different pattern of the network component, or we can say the network design. मतलब अलग अलग network design हो सकता है हमारे मतलब के नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास में जो अलग अलग टोपोलॉजीज है, वो है, सबसे पहले हमारे पास में है बस टोपोलॉजी, ठीक है. सबसे पहले बस टोपोलॉजी. सेकंड हमारे पास में है स्टार टोपोलॉजी. एंड द थर्ड वी हैव is ring topology. Number 4 we have bus star ring, bus star ring. Then next is tree topology. One more is there. Number 5 the mesh topology. Okay, so these are the 5 types of topology. One of the common question which is asked in the viva examination, ठीक है. पहले इसको थियरी क्वेश्चन में भी पूछते थे बिकॉज इन द ओल्ड सिलेबस, बट राइट नाउ इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की कम कर दिए हैं. एंड यू कैन कंसिडर दीज क्वेश्चंस इन द वाइवा आल्सो, ठीक है. तो वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग को, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टोपोलॉजीज. तो बेसिकली टोपोलॉजीज आर नथिंग बट द पैटर्न, द डिफरेंट डिजाइन, different structure, different fashion, the different way in which you are connecting your computers, okay. So first of all start with the bus topology, okay. So अच्छा, ये जो था हमारा, these all are the types of topologies, ठीक है. अलग अलग मैं पेज पे ले रहा हूँ so that you can refer it later. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बस टोपोलॉजी. So I think we can cover the bus topology, okay. In bus topology, okay, everyone concentrate over here, ठीक है. I need concentration of everyone over here because right now this is these are the topology, bus topology, bus topology, okay. So in bus topology, अच्छा, the way I am explaining these topologies, you need to explain and you need to understand in the same way, okay. आपको ये बुक ये इंफॉर्मेशन बुक में तो मिलेगी, लेकिन आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ. So in the bus topology, we have a backbone cable. Okay, so we have a backbone cable. So these backbone cable, and I'm going to connect my computers, and I'm going to connect my computers in the same way as we see the seating arrangement of bus. Okay, जैसे कि हमारा बस में किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट होता है, बीच में जाने का रास्ता होता है, आजू बाजू में क्या होता है, इसकी सीट्स होती है. इन द सेम वे दिस इज माय सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, सिस्टम नंबर 4, system number 5, system number 6. Okay, this is the one drawback of this topology is that we cannot connect more than 10 devices. Okay, even we can connect more devices, but it will be very jumbled and very complicated. Okay,
So we cannot connect more devices in we cannot connect more systems in the bus topology. Okay, तो यहाँ पर आपका system इस backbone cable से connected. Now this is connected, this is connected, this is also connected, this is also connected, and this is also connected. Okay? System number 1, 2, system number 3, system number 4, 5, and 6. So all my systems are connected with this particular backbone cable. Okay. So I have a backbone cable, and my systems are connected in the same fashion as the bus seating arrangement is there. Okay. So at both the end, we have to terminate it properly. Okay, we have to terminate the backbone cable properly. What is the reason? Again, this is the Viva question. Anyone can answer this question? Why we have to terminate, or we have to properly ground this particular end of the backbone cable? This is my backbone cable. Okay, and these are the systems or terminals. Okay, anyone idea? Okay, so these particular ends are terminated properly, or we can say these ends are grounded properly, so that the signal should not jump and come back and will disturb other signals. Okay, for example, I will say one case that your system number 1 is sending some information to system number 5. Okay, so your signal will come from this side. Okay, so यहाँ पर आने के बाद में it has two ways. Okay, because we don't have any other device. Okay, so जब कोई डिवाइस नहीं हमारे पास में, तो आपका सिग्नल यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकता है. ठीक है, तो it will go into this direction also, it will go into this direction. ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद, चलो इसको तो हम लोग बाद में लेते हैं. यहाँ आने के बाद में अगेन वी हैव टू ऑप्शन, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर गया. तो देखो हर जगह पे जा रहा है, बिकॉज जो सिग्नल्स को जहां जगह मिली वहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. ओके, अगर इसको हम लोगों ने प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं किया, अगर इसको हमने प्रॉपरली ग्राउंड नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन, योर सिग्नल्स विल जंप बैक, विल अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जंप करके वापस आएगा और दूसरे सिग्नल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव टू ग्राउंड दीज एंड, दैट इज द बैकबोन केबल के एंड्स प्रॉपरली. ओके, अभी जो ग्राउंडिंग करते हैं वो किससे करते हैं, दैट विल लर्न लेटर. ओके, मैं आपको बताऊंगा बाद में. सो दीज आर दी स्मॉल वाइवा क्वेश्चन. जहां जहां मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, तो वहां पर ध्यान रखो, ये वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो अब आके आपका सिग्नल नंबर 1, सॉरी आपका सिग्नल, आपका पैकेट यहाँ से निकला, यहाँ गया, ये प्रॉपरली ग्राउंडेड था, तो ये जाके आपका ग्राउंड हो गया, वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारा फायदा हुआ. अब सिग्नल आगे गया, आगे जाने के बाद में 4 के पास में गया, अगेन जाने के बाद में 4 के पास में गया, तो दिस सिग्नल वाज नॉट फॉर सिस्टम नंबर 4, तो इट विल बी डिस्कार्डेड बाय सिस्टम नंबर 4. यहाँ से आएगा सिस्टम नंबर 2 के पास में जाएगा, अगेन इट इज नॉट फॉर सिस्टम नंबर 2, सो इट विल बी डिस्कार्डेड बाय सिस्टम नंबर 2. अगेन दैट सिग्नल विल कम टू द सिस्टम नंबर 5. ओके, इट वाज फॉर सिग्नल system number 5 only, so it will be accepted by, that signal will be accepted by the system number 5. Okay, यहाँ भी डिस्कार्ड होगा, यहाँ भी डिस्कार्ड होगा. ओके, so ये हमारा बस टोपोलॉजी है. इस बस टोपोलॉजी में we have one backbone cable, and we have all the systems which are connected in the बस का सीटिंग अरेंजमेंट के मैनर में कनेक्ट. ओके, वेरी सिंपल, दिस इज द बस टोपोलॉजी. ओके, बस टोपोलॉजी. ओके, आज हम लोग इतना ही करते हैं. 11:30 हो गए. एज आई सेड यू, आई विल नॉट एक्सटेंड दिस लेक्चर. ऑलरेडी हमने काफी टाइम बैठ गए हैं, 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 11:30 हो गया अभी. सो यहाँ तक हम लोग ने टोपोलॉजी स्टार्ट की है. टोपोलॉजी में हम लोग ने वी हैव डन ओनली फर्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज द बस टोपोलॉजी. ओके, इफ टुमारो वी हैव लेक्चर, देन वी विल टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन से बताएं आप लोग को मैंने, वो टोपोलॉजी हम लोग लेंगे, दैट इज स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.